ناول قسط نمبر 12 مصنفہ مہر نور۔ ماضی سلیمان ماہی کو لیے واپس گھر آ چکا تھا۔ اب اسے دنیا کے کسی کونے میں سکون اگر مل سکتا تھا تو وہ صرف اس کا یہ گھر تھا۔ بچے کی ضرورت کی ساری چیزیں پہلے سے ہی اقصیٰ نے خرید کر رکھی تھیں اور وہ اکثر اسے نیٹ سے چھوٹے بچوں کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں اس کے طریقے نکال کر دکھاتی تھی۔ اکثر کام کرتے ہوئے بھی اسے بتاتی رہتی، فلاں چیز یہاں بڑی ہے، فلاں چیز وہاں بڑی ہے، جیسے وہ کہیں چلی جائے گی۔ شاید وہ پہلے سے ہی جانتی تھی کہ اس کی موت یقینی ہوگی۔ باہر رات گہری سے گہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں لیٹا سینے میں اپنی بیٹی کو سلائے اپنے موبائل کی اسکرین پر اقصیٰ کی تصویر دیکھ رہا تھا۔ یہ ان کی شادی کے 1 ماہ بعد کی تصویر تھی، اس کے دوست کی بہن کے نکاح کی۔ ساتھ والا گھر ان کا ہی تھا۔ وہ پہلی بار سلیمان کی بیوی کی حیثیت سے کسی فنکشن میں گئی تھی۔ کاسنی رنگ کی خوبصورت فراک میں سر پر اچھے سے حجاب کیے، دوپٹہ کندھوں پر ڈالے سلیمان کے ساتھ کھڑی اس تصویر میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بہت خوبصورت چمک تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ بالکل مکمل لگ رہے تھے۔ سلیمان کو کچھ ماہ پہلے کی رات یاد آئی۔ اس رات وہ اسے 12 بجے جگا رہی تھی۔ آپ اٹھ کیوں نہیں رہے؟ پلیز اٹھے نا۔ اس کی اس قدر پریشان آواز پر سلیمان فوراً سے اٹھا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ کیا ہوا میری جان؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ پریشانی تو ہو گیا تھا۔ اسے لگا شاید اقصیٰ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ مجھے ابھی آئس کریم کھانی ہے۔ یہ سن کر سلیمان کا دماغ پھک سے اڑا۔ کیا تم نے رات کے 12 بجے مجھے آئس کریم کھانے کے لیے اٹھایا ہے؟ وہ حیران ہی تو ہو گیا تھا۔ ہاں بس مجھے ابھی کھانی ہے، میرا دل چاہ رہا ہے، وہ عجیب فرمائشی انداز میں بولی۔ اس حالت میں وہ کافی چڑچڑی رہتی تھی۔ میری جان صبح لا دوں گا، ابھی اتنی رات کو میں کہاں سے لاؤں؟ اس نے پیار سے ہینڈل کرنا چاہا۔ نہیں مجھے ابھی کھانی ہے۔ آپ کیسے شوہر ہیں، میرے لیے ایک کام نہیں کر سکتے؟ میں بہت اچھا شوہر ہوں، مگر تم کیسی بیوی ہو، آدھی رات کو شوہر کو پریشان کر رہی ہو؟ اس بات پر وہ غصے سے بولی۔ اچھا میں اچھی بیوی نہیں ہوں تو ایک کام کیوں نہیں کرتے، دوسری شادی کر لیں اور اچھی بیوی لے آئیں؟ میں تو اچھی ہوں ہی نہیں۔ اس کی بات سنتے سلیمان مسکرایا۔ مطلب تم مجھے انڈائریکٹلی دوسری شادی کی اجازت دے رہی ہو؟ اکثر جل بھن کر بولی۔ میری بلا سے دوسری کریں یا چوتھی؟ جب میں اچھی ہوں ہی نہیں تو جو مرضی کریں۔ اب سلیمان سے تپا رہا تھا۔ نہیں اب تم خود ہی اجازت دے رہی ہو تو میں سوچ رہا تھا کلثوم بھابھی تو پہلی ہتھیلی پر سرسوں جما کر بیٹھی ہیں تو ان کی بہن سے ہی کر لیتا ہوں۔ یہ سن کر اقصیٰ کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہو گئی۔ جب میں مر جاؤں گی نا تب میری بلا سے جس سے مرضی کر لیجیے گا۔ اس کے مرنے کی بات پر اندر سے دل چھلنی ہو جاتا تھا، مگر بظاہر وہ مسکرا کر بولا۔ اب تم آئے روز ہی مجھے چھوڑ کر جانے کی باتیں کرتی ہو تو ظاہر سی بات ہے نا، اکیلا تو رہوں گا نہیں تو کر لوں گا دوسری شادی۔ اب اقصیٰ نے تکیہ اٹھا کر اسے دے مارا۔ صرف ایک آئس کریم کھانے کی فرمائش کی تھی، آپ تو دوسری شادی تک پہنچ گئے۔ اب آپ مجھ سے 10 فٹ کی دوری پر رہے گا اور جائیں دوسری بیوی کے پاس اور اس سے چپکیں۔ وہ غصے سے منہ پھلا کر دوسری طرف رخ پھیر کر لیٹ گئی۔ سلیمان اٹھ کر اس کے قریب ہوا اور اس سے لپٹ کر لیٹ گیا۔ وہ چڑ ہی گئی تھی۔ میں کہہ رہی ہوں دور رہیں مجھ سے۔ نہیں رہ سکتا، سمجھا کرو۔ یہ کہتے ساتھ اس نے اقصیٰ کو اپنے حصار میں لیا اور پکڑ مضبوط کی۔ وہ ابھی بھی غصے سے منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ جائیں دوسری بیوی کے پاس، مجھے نہیں بات کرنی آپ سے۔ نہیں میں تو اپنی پیاری بیوی سے دور نہیں جا سکتا، تمہارے علاوہ کوئی اور اچھی نہیں لگتی ہے نا آپ کو وہ کلثوم بھابھی کی بہن؟ وہ جل رہی تھی۔ یہ دیکھتے سلیمان دل کھول کر مسکرایا۔ اگر وہ اچھی لگتی تو آج کیا تم یہاں ہوتی؟ اس جواب پر اقصیٰ کچھ پل تو بول ہی نہ پائی۔ سلیمان نے نرمی سے اس کی پیشانی چومی۔ شاباش سو جا، صبح پکا 2 آئس کریم لا دوں گا۔ اور واقعی اگلی صبح اس نے پہلا کام 2 آئس کریم لانے کا ہی کیا تھا۔ ایک چناکے کے ساتھ ماضی کا بلبلہ تحلیل ہو گیا۔ کمرہ وہی تھا، جگہ وہی تھی، بیڈ وہی تھا، وہ خود بھی وہی تھا، مگر بس وہ نہیں تھی۔ پھر وہ اسے اسپتال کے بیڈ پر سوال کرتی نظر آئی۔ اس رات سلیمان کے مذاق میں کہی گئی بات کو دل پر لے چکی تھی۔ اسے لگا شاید وہ دوسری شادی کر لے گا، مگر سلیمان خان کی زندگی میں تو اکثر سلیمان کے علاوہ اب کوئی دوسری عورت نہیں آ سکتی تھی، اور یہ طے تھا۔ اس کے پاس بس کچھ یادیں ہی تو رہ گئی تھیں۔ اس کی بیٹی نے اسے ذرا بھی تنگ نہ کیا، اور اب وہ دودھ پینے کے بعد بہت سکون سے سو رہی تھی۔ 3 دن بعد آج اس کو اپنے سینے میں بہت سکون محسوس ہو رہا تھا۔ ہاں اس کی بیوی نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ وہ دونوں باپ بیٹی ایک دوسرے کے لیے کافی تھے۔ دن گزر رہے تھے، سلیمان اپنی بیٹی کا دھیان بہت اچھے سے رکھ رہا تھا۔ وہ بہت چھوٹی تھی، وہ اس کو کسی نازک گڑیا کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا۔ اقصیٰ کی خواہش کے مطابق اس کا نام وہ ماہر سلیمان خان رکھ چکا تھا۔ کالج جانا تو وہ اسی دن چھوڑ گیا تھا جس دن اس کی بیوی اس دنیا سے گئی تھی۔ اب وہ بچوں کو گھر پر ہی ٹیوشن پڑھانا شروع کر چکا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو 1 منٹ کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ بھابھی اور حیدر کبھی کبھار آتے اور اکثر سارا دن حیدر اپنی ہیر کے ساتھ کھیلتا رہتا۔
वो पूरी कोशिश कर रहा था अपनी बीवी को शिकायत का मौका न दे। वो अपनी बेटी को माँ और बाप दोनों का प्यार दे रहा था। माहिर 2 माह की हो चुकी थी। जब कभी हैदर का दिल करता तो वो ज़िद करके सुलेमान को हीर के साथ हवेली बुला लेता। आज भी सुलेमान बेटी को लिए हवेली आया हुआ था। अब माहिर नूर भाभी के पास थी। वो बिल्कुल किसी माँ की तरह उसका ख्याल रखती थी और हैदर खुशी खुशी उसके नन्हे हाथों के साथ खेल रहा था। उसे अपनी प्रिंसेस बहुत ज़्यादा पसंद थी। सुलेमान नीचे लाउंज में अपनी माँ के पास बैठा था। इतने में लाउंज के दरवाजे से हाकिम खान अंदर दाखिल हुए। उनको देखते ही वो उठ खड़ा हुआ और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। इससे पहले कि सुलेमान पहली सीढ़ी पर कदम रखता, हाकिम खान की आवाज़ ने उसके कदम रोक दिए। सुलेमान बैठो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वो खामोशी से वापस आया और आकर लाउंज के सोफ़े पर बैठ गया। वो इस वक्त किसी भी किस्म की बहस नहीं करना चाहता था। हाकिम साहब उसके पास आए और बैठे। अब वो दोनों बाप बेटा आमने सामने बैठे थे। सुलेमान ने अपने बाप की तरफ नहीं देखा। वो बस सीढ़ियों से ऊपर इसी कमरे के सिमत देख रहा था जिसके अंदर उसकी बेटी इस वक्त हैदर के साथ खेल रही थी। लाउंज की खामोशी को हाकिम खान की आवाज़ ने तोड़ा। बेटा अब तुम शादी कर लो। उसने एक झटके से 1 साल के बाद आज अपने बाप की तरफ यूं देखा जैसे उनकी दिमागी हालत पर शुबा हुई। उनकी बात सुनते सुलेमान बेख्तियार हंसा और फिर हंसता ही चला गया। उसकी हंसी की आवाज़ इतनी ऊंची थी कि सारे हैरानी से लाउंज में आ गए, मगर उसकी वह हंसी खोखली थी। बहुत देर बाद अपनी हंसी को काबू करने के बाद बोला, शायद आप भूल चुके हैं सरदार साहब, तो मैं याद करवाता चलूँ, मेरी शादी हो चुकी है और मैं एक बेटी का बाप हूँ। वैसे आप भी कमाल करते हैं, वैसे आप भी कमाल हैं। कभी कहते हैं बीवी को तलाक दो, कभी कहते हैं शादी करो, मगर मैं पहले भी बता चुका था ये मेरी ज़िंदगी है, उसे मैं अपनी मर्ज़ी से गुजारूंगा। वो आज भी उनसे सरदार की हैसियत से बात कर रहा था, बाप की हैसियत से नहीं। बेटा वो इस दुनिया से जा चुकी है, इसीलिए कह रहा हूँ कि बच्ची को एक माँ की ज़रूरत है। उसकी खातिर दूसरी शादी कर लो, एक औरत आएगी तो बच्ची को माँ की तरह पालेगी। अब सुलेमान को लगा जैसे वो इसके कानों में पिघलता हुआ शीशा उंडेल रहे हूँ। आंखों के सामने अस्पताल का वो कमरा आ गया, उसकी बीवी के आखिरी अल्फाज। उसे मरने से पहले भी यही डर था कि कहीं उसका शौहर दूसरी शादी न कर ले और उसकी बेटी पर सौतेली माँ ना ले आए। वो इस दुनिया से गई है, मेरे दिल से नहीं, वो मेरे पास है, मेरे साथ है। उसकी रूह को मैं अपने इस पास महसूस कर सकता हूँ। और जहाँ तक रही बात मेरी बेटी की, तो इसके लिए मैं काफ़ी हूँ, माँ और बाप दोनों का प्यार देने के लिए। और मेरी ज़िंदगी में मेरी बीवी के बाद सिर्फ एक निस्वानी वजूद अहमियत का हामिल है, तो वो मेरी बेटी का है। उसके अलावा इस दुनिया में मुझे किसी औरत से कोई गरज नहीं। इस बार सुलेमान मजबूत लहजे में ऊंची आवाज़ में बोला। उसने बहुत मुश्किल से खुद को कुछ सख्त कहने से बाज रखा। बेटा मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, सारी ज़िंदगी बड़ी है, शादी कर लो। और बच्ची का क्या है, वो कुलसुम संभाल लेगी, तुम्हारी आंखों के सामने इस घर में रहेगी। अनुश्री को भी तो वो पाल रही है। अब तो सुलेमान के सब्र की हद ख़त्म हो गई। वो एक झटके से उठ खड़ा हुआ, बाप के रूबरू आया। अब कि वो बोला नहीं, गिर जा था। आपको याद आ गया, आप मेरे बाप हैं। जिस दिन मैं अपनी बीवी को इस हवेली में लाया था, उस दिन कहाँ गया था वो बाप? जिस दिन मेरी बीवी को आपने इस हवेली की बहू मानने से इनकार किया था, उस दिन कहाँ गया था वो बाप? जिस दिन आपने मेरी बीवी के सामने मुझ पे हाथ उठाया था, उस दिन कहाँ गया था वो बाप? जानते हैं वो कितने घंटे रोती रही थी सिर्फ इस बात पर कि उसके शौहर पर उसके ससुर ने हाथ उठाया? और वजह वो थी, वो रोती रही, वो कहती रही, मुझे छोड़ दो, अपने माँ बाप को ना छोड़ो। आप जानते भी हैं बाप का प्यार होता क्या है। उसके बाप उसके पैदा होने से पहले ही मर चुका था। उसने कभी बाप की शफ़क़त, उसका लम्स महसूस नहीं किया था। जानते हैं कितने मान से मैं उसे यह कहकर लाया था कि आज से मेरा बाप तुम्हारा बाप। और आपने क्या किया? आपने बेटी तो दूर, उसे बहू तक मानने से इनकार कर दिया। जानते हैं जब पहली बार डॉक्टर ने बताया कि मैं बाप बनने वाला हूँ, मगर मुझे कोई खुशी नहीं हुई क्योंकि वो ठीक नहीं थी। डॉक्टर ने कहा अगर ये रिस्क लिया तो उसकी जान को ख़तरा होगा। वो इसी दिन जान गई थी कि उसकी मौत यकीनी है। मैंने उसे बहुत समझाया कि मैं उसकी जान को ख़तरे में नहीं डाल सकता। मैं खुद गर्ज हो गया था उसके लिए और वो खुद गर्ज हो गई उस नन्हे वजूद के लिए। जानते ही क्या हैं आप? जो मेरे हाथ देख रहे हैं, इन हाथों में उसने अपनी जान दे दी। उसकी सांसें उखड़ रही थीं, मगर फिर भी उसे यही डर था कि उसके मरने के बाद कहीं मैं दूसरी शादी तो नहीं करूँगा। उसकी सांसें उखड़ रही थीं, मगर फिर भी उसे यही डर था कि मैं उसके मरने के बाद कहीं मैं दूसरी शादी तो नहीं करूँगा। वो मरने से पहले बस यही कहती रही कि मुझे मुझे ही अपनी बेटी की माँ और बाप बनकर ख्याल रखना है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती थी मैं अपनी बेटी के लिए सौतेली माँ लाऊं। जानते हैं उसने आखिरी बात क्या कही थी? उसने कहा था कि अगर मैंने दूसरी शादी कर ली तो कब्र में उसकी रूह को तकलीफ़ होगी। और उसके बाद वो मेरे इन हाथों में दम तोड़ गई। और आप कहते हैं दूसरी शादी कर लूँ?
بات کرنے کے آخر تک وہ ہچکیوں کے ساتھ رو دیا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ سانس لینے کو رکا۔ سارے لاؤنج میں سکوت چھا گیا۔ اس کے دونوں بڑے بھائی اور بھابیاں اور ماں باپ سب سن رہے تھے۔ اب میں سمجھا، آپ کو میری دوسری شادی کی پٹیاں آپ کی بڑی بہو نے پڑھائی ہیں۔ وہ میری بیٹی کو پالنا نہیں بلکہ اپنی بہن کے راستے کی رکاوٹ ختم کرنا چاہتی ہیں۔ ابھی میری بیوی کو مرے عرصہ ہی کتنا ہوا ہے کہ آپ لوگ میرے زخم ہرے کر رہے ہیں۔ ایک بات آپ اپنی بہو کو اچھے سے سمجھا دیں کہ میں دوسری شادی کسی صورت نہیں کروں گا۔ میرے لیے اب میری ساری زندگی میری بیٹی کی ہے، اور اگر میری زندگی میں میری بیوی نہ بھی آئی ہوتی تب بھی میں ان کی بہن سے کبھی شادی نہ کرتا۔ اگر آج کے بعد مجھے اس حویلی میں کسی نے دوبارہ شادی کا کہا تو میں کبھی اس حویلی میں دوبارہ قدم نہیں رکھوں گا، اور نہ ہی اپنی اور اپنی بیٹی کی شکل کسی کو دکھاؤں گا۔ اب باقاعدہ اس کا سارا جسم آہستہ آہستہ کانپنا شروع ہو گیا۔ میں آپ سے بہتر باپ بن کر دکھاؤں گا۔ میری بیٹی کو اس دنیا میں لانے کی خاطر اس نے اپنی جان قربان کر دی، اور آپ چاہتے ہیں میں اس کی قربانی کو ضائع کر دوں؟ اب آپ چاہتے ہیں میں اس کی روح کو تکلیف دوں؟ آپ جانتے ہیں کیا ہے، اسے ایک پل نہیں دیکھتا تھا تو مجھے سکون نہیں ملتا تھا۔ 2 ماہ ہو گئے ہیں اسے دیکھے۔ جانتے بھی ہیں میں کس قدر تکلیف میں ہوں؟ آپ کیوں جانیں گے؟ آپ کے لیے سب کچھ تو بس آپ کی سرداری ہے۔ آپ نے کبھی ہمارے دلوں میں جھانک کر دیکھا ہی نہیں۔ اولاد کو لاکھوں روپے پیسہ خرچ کرنے کے لیے دینا ہر دکھ اور غم کا حل نہیں ہوتا۔ ان کے پاس بیٹھ کر ان کے غم، ان کی تکلیف جاننے کی کبھی کوشش کی ہے آپ نے؟ وہ بول کر اب خاموش ہو چکا تھا، مگر سانس ابھی تک پھولا ہوا تھا۔ اس کے بعد سلیمان نے گلاس بھر کر پانی پکڑا۔ وہ ایک ہی سانس میں سارا پی گیا، مگر اب بھی سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی، اور اس کا باپ سارے کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح وہی صوفے پر بیٹھا رہ گیا۔ آج ان کے بیٹے نے ان کی آنکھیں کھولی تھیں۔ سلیمان اب سیڑھیوں کے پاس کھڑا حیدر کو آوازیں دے رہا تھا۔ سینے میں درد ابھی تک ہو رہا تھا۔ اس نے اپنا سینہ مسلا، مگر سکون نہ ملا۔ اس کی ماں باپ اس کے ساری کارروائی دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد حیدر نیچے اتر کر آیا۔ کیا ہوا چاچو؟ بیٹا جاؤ بیٹا، مما کو بولو ہیر کو نیچے لے کر آئیں، مجھے اسے ابھی دیکھنا ہے۔ حیدر سیڑھیاں چڑھتا ہوا کمرے میں گیا، اور 5 منٹ بعد اب نور بھابی ہیر کو لے کر نیچے اتر رہی تھیں۔ انہوں نے سلیمان کی حالت دیکھی تو اس پر بہت ترس آیا۔ وہ اب پہلے کی طرح اپنا خیال نہیں رکھتا تھا۔ شیو بڑی ہوئی، بال بھی اب ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ سلیمان بےتابی سے آگے بڑھا اور بھابی کے ہاتھوں سے ماہی کو لے کر فوراً سینے سے لگا لیا۔ اسے اپنے دل میں اندر تک ٹھنڈک اترتی محسوس ہوئی۔ اس کے بعد اس نے اپنی بیٹی کی پیشانی چومی اور ماہر کو اچھے سے کمبل میں لپیٹا، کیونکہ باہر سردی تھی، مگر دل میں ابھی بھی درد اٹھ رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ دروازے کی طرف بڑھتا بھابی بولی، کچھ دیر رک جاؤ سلیمان، کھانا کھا کر چلے جانا۔ سلیمان نے عقیدت سے اس ماں جیسی بھابی کو دیکھا۔ نہیں بھابی، اگر 5 منٹ میں مزید اس حویلی کے در و دیوار کے اندر رہا تو میرا دل پھٹ جائے گا۔ مجھے سانس نہیں آ رہی، اس وقت میں صرف سکون چاہتا ہوں، اور وہ میرے اپنے گھر پہ ہے۔ آئندہ اگر حیدر ہیر سے ملنا چاہے تو آپ اسے میرے گھر بھیج دیجیے گا، کوشش کیجیے گا مجھے یہاں مت بلائیے گا۔ وہ بہت سنجیدہ لگ رہا تھا۔ نور بھابی سمجھ نہ سکی کہ آخر کیا ہوا۔ وہ اوپر کمرے میں تھیں، مگر لاؤنج کی گمبھیر صورتحال دیکھ کر وہ جان گئیں کہ کچھ نہ کچھ بات تو تھی۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا، اور سلیمان بیٹی کو سینے سے لگائے لاؤنج کا دروازہ پار کر گیا۔ آج ہیر پورے 1 سال کی ہو گئی تھی، اور آج اقصیٰ کو بچھڑے 1 سال ہو گیا تھا۔ جب جب وہ بیوی کو یاد کرتا تو دل غم سے پھٹنے کے قریب ہوتا، مگر جب بیٹی کو دیکھتا تو اسی دل کے درد پر مرہم کا کام کرتی۔ 2 ماہ پہلے اس نے پہلی بار اپنا پہلا قدم لیا تھا، اور اس دن سلیمان بہت خوش تھا۔ اس کی بیٹی اپنی ننھے ننھے قدموں سے چلنا شروع ہو چکی تھی، اور 3 ماہ پہلے اس نے اپنی توتلی زبان میں پہلی بار بابا بولا تھا۔ اس دن اسے اقصیٰ کی وہ بات بہت شدت سے یاد آئی۔ کیا آپ کو خوشی نہیں ہوگی جب آپ کی اولاد آپ کو بابا کہہ کر پکارے گی؟ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ اب کہیں سے آ جائے اور وہ اس سے بتائے کہ وہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ حویلی میں اس واقعے کے بعد 6 ماہ تک سلیمان حویلی نہیں گیا، مگر پھر ماں کی التجا پر ان سے ملنے کے لیے بیٹی کو لے کر دوبارہ چلا گیا۔ اس دن کے بعد کسی نے سلیمان سے دوبارہ اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس وقت وہ ماہر کے ساتھ حویلی میں موجود تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی معصوم شرارتوں سے سلیمان کو ہمیشہ ہنساتی رہتی تھی۔ اب اس کے بال بھی اتنے ہو گئے تھے کہ وہ 2 چھوٹی پونیاں بن جاتی تھیں۔ سلیمان اپنے ہاتھوں سے اس کے بال بناتا تھا۔ وہ بالکل اقصیٰ کی طرح اب اس کی زندگی میں بہت خاص بن گئی تھی۔ اسے ماہر سے اقصیٰ کی خوشبو آتی تھی، بالکل چھوٹی اقصیٰ تھی۔ حویلی میں آج ہیر کی کہکاریاں اور حیدر کے شورغل کی آواز گونج رہی تھی۔ مما جلدی سے کیک لے آؤ نا، میں نے اور میری پرنسس نے کھانا ہے۔ یہ حیدر کی تیسری آواز تھی، جو لاؤنج میں بیٹھا ہیر کے ساتھ کھیل رہا تھا، اور نور بھابی کچن میں کیک بنا رہی تھیں۔ ہیر حیدر کی پوری نقل اتارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سلیمان اور حماد دونوں بیٹھے ان دونوں کی حرکتیں انجوائے کر رہے تھے۔ اچانک ہیر میٹ سے اٹھی، اپنے ننھے ننھے قدم کچن کی جانب لیے اور جا کر نور بیگم کی ٹانگوں سے لپٹ گئی اور اپنی پیاری سی آواز میں بولی، ماما۔ اور نور جو کام کر رہی تھیں اس کے اس عمل سے ساکت رہ گئی، بالکل ویسے جیسے ایک وقت میں اقصیٰ حیدر کے ماما کہنے سے ساکت رہ گئی تھیں۔
नूर ने झुककर हीर को गोद में उठा लिया और बेसाख्ता उसके चेहरे पर और पेशानी पर लब रखे। वो लाड से नूर बेगम के गले से लग गई और वो तीनों जो लाउंज में बैठे थे ये देखकर सुन रह गए। सुलेमान को लगा जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में दबा दिया हो। अगर आज नूर बेगम की जगह अक्सा को माँ कहा होता तो सुलेमान के दिल में ठंडक उतरती, मगर नहीं, नूर भाभी भी तो हीर की माँ थी, बिल्कुल वैसे जैसे अक्सा हैदर की माँ थी। अब उनके गले लाड से लगी केक मांग रही थी, जैसे देखकर इन दोनों तीनों की हंसी एक साथ निकली। अच्छा, ये प्यार सिर्फ केक के लिए था? नूर बेगम उसकी चालाकी पर हैरान होती उससे सवाल पूछ रही थी और हीर ने इस बात में सिर हिला दिया। ये देखकर नूर बेगम की आंखें फैल गईं। वो फौरन से नीचे उतरी और अपने नन्हे नन्हे कदमों से चलती हुई लाउंज में आई। अब के निशाना हमाद ताया थे। अब वो इनको इशारा कर रही थी वो इसे उठाकर सोफे पर बिठाएं। उन्होंने प्यार से उठाया और सोफे पर बिठा दिया। ताया, केक। इस बार सुलेमान को अपनी बेटी पर बेसख्ता प्यार आया। मेरी बेटी केक खाएगी? हमाद ताया के सवाल पर उसने जोर शोर से सर हिलाया। बेगम जल्दी से केक ले आओ, मेरी बेटी को खाना है। हमाद साहब ने ऊंची आवाज़ में बेबी को पुकारा। नूरताई उसे केक लाकर दे चुकी थीं। अब वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से सुलेमान के मुंह में केक डाल रही थीं और अब उसके हाथों से खुद खाने की बजाय उसे खिला रही थी। नी बाबा, मैं साथ साथ बाप को मना भी कर रही थी कि मैं आपको खिलाऊंगी। उसकी इतनी खूबसूरत शरारतें और हरकतें ही सुलेमान को ज़िंदगी जीने दे रही थीं, वरना वो कब का मर चुका होता। वक़्त अपने पंख फैलाए उड़ी जा रहा था। हीर 5 साल की हो चुकी थी। इन 5 सालों में हैदर, नूरताई और हमाद आया, ये तीन हवेली में उसके लिए बहुत ख़ास हो गए थे और सुलेमान में तो उसकी जान थी। वो अपने बाप को अच्छी तरह तंग करती थी, कोई ना कोई काम ज़रूर ख़राब करती रहती। मस्तियाँ करना तो उसका जैसे मशगला था। हवेली में नूशी और हैदर ही बस उससे ठीक से बात करते थे, उसके बाकी सारे कज़न तो उसे मुँह ही नहीं लगाते थे। मगर यहाँ फ़र्क किससे पड़ रहा था? वो माहिर सुलेमान ख़ान थी, अपने बाप की शहज़ादी और हैदर की प्रिंसेस। जब सुलेमान सो रहा होता तो उठकर उसके सीने पर लेट जाती। उसने कभी अपने बाप को अपनी माँ का नाम लेकर तंग नहीं किया था। वो अब नूर को बड़ी मामा कहती थी और हमाद को ताया अब्बा। सुलेमान ने उसका एडमिशन नूशी और हैदर के साथ उसके स्कूल में करवा दिया था। हैदर बिल्कुल उसका इस तरह ख्याल रखता जैसे उसका बॉडीगार्ड हो, किसी को हीर के पास भटकने नहीं देता था। कुछ दिन पहले सुलेमान किसी काम से शहर गया हुआ था। वहाँ से वापसी पर आते हुए उसने एक कत्ल होते हुए देख लिया। वो किसी गैंग के आदमी थे जिन्होंने जानबूझकर एक वकील की गाड़ी को ट्रक से उड़ा दिया था। पुलिस केस बना था, सब एक्सीडेंट समझ रहे थे, मगर वो ऑन द सपोर्ट गवाह था। अब वो लोग सुलेमान को अपना बयान बदलने पर मजबूर कर रहे थे, वरना उसकी जान लेने की धमकी दे रहे थे। एक बात तो तय थी, सुलेमान अपना बयान नहीं बदलेगा। जिस वकील को इन लोगों ने मारा था उसके दो छोटे छोटे शेरखाट बच्चे थे। इन लोगों को ज़रा रहम नहीं आया। सुलेमान को अपनी कोई फ़िक्र नहीं थी, उसे असल फ़िक्र तो अपनी माँ ही की थी। वो क्या करता कुछ समझ नहीं आ रही थी, इसलिए उसने अक्सा की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने का फ़ैसला किया। अक्सर ने उससे कहा था कि अगर आपको लगे कि आप मज़ीद माही की हिफाजत नहीं कर सकते तो उसको हैदर के हवाले कर दीजिएगा। इसलिए सुलेमान ने हमाद भाई को सारी बात बताई और माही को फ्यूचर के हवाले से अपनी मर्ज़ी भी। भाई खुद एक पुलिस वाले थे, वो इस केस को हैंडल कर सकते थे, मगर सुलेमान को अपनी ज़िंदगी ख़तरे में लग रही थी। इसलिए उसने माहिर के 5वें जन्मदिन पर हैदर और माहिर का निकाह करवा दिया। जब हैदर को ये पता चला कि हीर अब हमेशा के लिए सिर्फ उसकी हो जाएगी तो वो खुशी खुशी निकाह के लिए तैयार हो गया। वो आम बच्चन जैसा ना था, वो समझदार बच्चा था। अब तो इस निकाह को 2 माह हो गए थे। सुलेमान ने अपने बाप को फ़ैसला सुनाया था, ना कुछ पूछा ना कोई मशवरा लिया। उसके बाद बाप ने किसी किस्म का कोई रद्द अमल ना दिया और सारी हवेली वालों को किसी भी किस्म की बहस करने से मना कर दिया। इसलिए सुकून से निकाह हो गया। माही का ज़्यादा वक्त हैदर के साथ ही गुजरता था। वो अक्सर वीकेंड पर बाबा के साथ हवेली आ जाती। वो दोनों टेरेस की कुर्सियों पर बैठकर ढेरों बातें करते। हैदर उसे अक्सा के बारे में काफ़ी बातें बताता। वो अपनी माँ की बातें सुनकर बहुत खुश होती थी। हवेली में सिर्फ माहिर ही हैदर कहती थी, वरना बाकी सब तो इसे अजीब व गरीब निक नेम से पुकारते थे और अनुषा उसे भैया कहती थी। आज अनुषा के वलीद से किसी बात पर लड़ाई हो गई थी। वो फ़ौरन टेरेस पर हैदर से शिकायत करने पहुंच गई। 12 साला हैदर टेरेस में अपनी बाएं साइड वाली कुर्सी पर बैठा हुआ था। आज मौसम अच्छा था, हवाएं चल रही थीं। वो हीर को मिस कर रहा था, मगर हीर इस वक्त अपने घर में अपने बाबा के साथ थी। इतने में टेरेस का दरवाज़ा खुला और 9 साल अनुषा अंदर आई और आकर हीर की जगह पर बैठ गई। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हैदर ने उसका आना और फिर बैठना नोट किया। हम ज़रूर बात करेंगे गुड़िया, मगर पहले तुम इस कुर्सी से उठो। हैदर ने अजीब लहजे में कहा कि अनुषा कुछ हैरान हुई। क्यों, क्या हुआ? इस कुर्सी के साथ कोई मसला है? ये बात सुनकर हैदर की आंखें एक अजीब चमक उभरी। हाँ, मसला ये है कि ये कुर्सी सिर्फ प्रिंसेस की है, वही यहाँ बैठ सकती है, उसके अलावा कोई नहीं। हैदर के इस अजीब मंतक पर अनुषा को तो गुस्सा ही आ गया और वो चिढ़ कर गोया बोली, ले भला, ये क्या बात हुई? अगर ये कुर्सी उसकी है तो मैं कहाँ बैठूंगी?
ये बात सुनकर हैदर के होंठों पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट आई और वो अपनी कुर्सी छोड़कर उठ खड़ा हुआ। ये देखो, मेरी जगह है ना, तुम इस पर बैठ सकती हो। तुम जब चाहो मेरी कुर्सी पर किसी भी वक्त आकर बैठ सकती हो। बल्कि तुम एक काम करो, आज से ये कुर्सी और ये जगह हमेशा के लिए तुम्हारी हुई। अनुष्का को इस बात अजीब मंतक पर बड़ा गुस्सा आया। वो मुंह फुलाकर बोली, नहीं, मुझे नहीं बैठना, ना मुझे आपसे कोई बात करनी है, मैं जा रही हूँ। कहते साथ वो उठ खड़ी हुई। हैदर को तो गुस्सा करती हुई बहुत क्यूट लगी। अच्छा गुस्सा छोड़ो, एक बात तो बताओ, अगर मेरे अलावा कोई और तुम्हें गुड़िया कहे तो तुम्हें कैसा लगेगा? अब वो अपनी बहन से सवाल पूछ रहा था। ये बात सुनकर वो फ़ौरन बोली, बहुत गुस्सा आएगा, किसी को हक नहीं कि आपके अलावा कोई भी मुझे गुड़िया कहे। अनुष्का की बात सुनकर एक बार फिर हैदर के होंठों पर मुस्कुराहट उभरी। बिल्कुल वैसे ही, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा कि कोई मेरी प्रिंसेस की जगह पर बैठे। अनुष्का ये बात सुनकर जैसे समझ गई। ओह, तो ये बात है, फिर ठीक है, मैं 10 कुर्सी पर कभी नहीं बैठूंगी। अब हैदर के होंठों पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट दौड़ गई। अनुष्का भी मुस्कुरा दी। आपको पता है, फलीद भाई ने आज मुझे डांटा। अब वो क्यूट सा मुंह बनाकर अपने भाई को शिकायत लगा रही थी। अच्छा, फिक्र ना करो, मैं उससे पूछूंगा उसने मेरी गुड़िया को क्यों डांटा। अनुष्का आगे बढ़ी और हैदर के सीने से लग गई और फरमाइश से बोली, और डांटेंगे भी। हैदर उसके मक्खन लगाने की आदत पर हंसा और इस बात में सर लाया। इतने में टेरेस के दरवाजे में से 5 साला माही का चेहरा नमूदार हुआ। वो इस वक्त नीली फ्रॉक में बालों को बहुत खूबसूरत तरीके से बैंड किए हुए थी। वो भागती हुई आई और वो भी इन दोनों के गले लग गई। मैं भी हूँ। वो भी सुलेमान के साथ हवेली आई थी। अब हैदर एक तरफ अनुष्या और दूसरी तरफ माही गले लगी हुई थी। माही की बात पर तीनों का कहका टेरेस में एक साथ गूंजा। इस वक्त सुलेमान अपनी माँ के कमरे में मौजूद था। वो हवेली में अक्सा का कुछ ज़रूरी सामान और कुछ चीज़ें लाया था अपनी माँ के हवाले करने, और आज माही को हमेशा के लिए हवेली में ले आया था। और वो धमकी वो लोग धमकी देने से बाज नहीं आ रहे थे। गांव के उस छोटे से घर में हीट महफूज नहीं थी, इसलिए हवेली में उसकी जान बिल्कुल महफूज रह सकती थी। वो अपनी उस बेटी के लिए कुछ भी कर सकता था जिसकी खातिर अक्सर ने अपनी जान कुर्बान की थी। वो बहुत ख़ास थी। अब वो अपनी माँ को हिदायत कर रहा था कि अगर वो आज के बाद वापस ना आया तो उसकी बेटी का ख्याल रखें, और अगर कुछ भी हो जाए वो इसे हैदर के सपुर्द करेंगी। उसकी माँ यह सुनकर परेशान हो गई। शायद अक्सा की तरह वो भी जान गया था कि इंसाफ की जंग में उसकी जान जाएगी। आज वो चाहकर भी अपनी बेटी के लिए खुद खर्च नहीं हो पा रहा था। उसकी आंखों के सामने बस वो छोटे 2 रोते बच्चे आ रहे थे जो इस वकील के थे। कुछ देर बाद अब वो हीर के सामने टेरेस पर खड़ा था। मेरी बेटी अपने बाबा से कितना प्यार करती है? इस सवाल पर माही अपने बाप के गले लग गई। बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। सुलेमान ने बहुत मुश्किल से अपनी आंखों की नमी को काबू करने की कोशिश की। माही के बाबा भी उससे बहुत प्यार करते हैं। हमेशा याद रखना, बाबा की अच्छी बेटी हो ना। अगर मैं वापस ना आया तो अपना ख्याल रखना, कभी ना भूलना। आपके बाबा आपसे बहुत प्यार करते हैं। उसका कलेजा फट रहा था। न जाने क्यों उसे लग रहा था आज वो अपनी बेटी को आखिरी बार देख रहा है। उसने आगे बढ़कर अपनी बेटी के पेशानी चूमी, उसे कसकर गले लगा लिया। एक बार फिर खोने का डर दिल पर हावी हो रहा था। वो अपनी बेटी को इस बड़ी दुनिया में अकेला छोड़कर जा रहा था, सिर्फ हैदर के सहारे। इसका दिल चाहा यह वक्त यहीं रुक जाए। अदालत का टाइम हो रहा था। आज इस केस की पेशी में उससे भी बुलाया गया था। बहुत कोशिश के बाद दिल पर पत्थर रखकर वो अपनी बेटी से अलग हुआ। अब वो हैदर के पास आया जो कुछ दूर खड़ा बाप बेटी को देख रहा था। अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम मेरी बेटी की सारी ज़िंदगी हिफाजत करोगे, उसे कभी तकलीफ़ नहीं पहुंचाना। अगर कोई उसे तकलीफ़ पहुंचाए तो तुम इससे हिसाब लेना। वो सिर्फ तुम्हारी है, इस पर सिर्फ तुम्हारा हक है। उसे कभी अकेला ना छोड़ना। अगर वो रोए तो मैं उसके आंसू साफ करने हैं। बोलो, करोगे ना ये सब? हैदर ने चाचू का बढ़ाया हुआ हाथ थाम लिया। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं ये सब करूँगा। मगर चाचू, आप इस तरह हीर को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? आप जानते हैं ना वो आपके बगैर एक पल नहीं रहती। सुलेमान ने हैदर को गले लगा लिया मगर इस सवाल के जवाब न दे पाया। उसके बाद वो चला गया। हैदर माही के पास आया और उसे अपने गले लगा लिया। वो अदालत में गवाही दे चुका था और इन लोगों को सज़ा हो चुकी थी, मगर हवेली वापस आते हुए उसकी गाड़ी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। इन लोगों ने उससे अपनी हार कहाँ बर्दाश्त हुई थी। उसकी बाइक लड़खड़ाती हुई सड़क पर दूर जा गिरी। आखिरी चेहरा जो उसकी आंखों के सामने था वो अपनी बेटी का था। आज उसे अक्सा की तकलीफ महसूस हो रही थी कि कैसे वो इसे छोड़कर गई होगी। वो अपनी बेटी को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था, मगर शायद वक्त आ चुका था। उसकी आंखों के सामने धुंध छाने लगी। फिर उसने धुंध में अक्सा को अपनी तरफ बढ़ते हुए पाया। वो बहुत नरमी से अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा रही थी। हैदर ने हाथ उठाया और उसके हाथ में दे दिया। रूह निकल गई, पीछे जिस्म साकत रह गया। हवेली में एम्बुलेंस आकर रुकी। पीछे हमाद किसी हारे हुए शख्स की तरह अपनी गाड़ी से उतरा। हैदर दौड़ता हुआ हवेली के दरवाजे तक आया। उसका दिल बहुत अजीब डर से
अजीब अंदाज से घबरा रहा था। वो बाबा के पास गया और उनसे पूछ रहा था कि ये कौन है, मगर हमाद कहाँ जवाब देने की हालत में था। एम्बुलेंस की आवाज़ सुनकर सारे घर वाले हवेली के सहन में आ गए। हाकिम साहब का दिल किसी अनहोनी के ख्याल से धड़का। वो आगे बढ़े और कांपते हाथों से उस जिस्म के चेहरे से कपड़ा हटाया। अपने बेटे की मैयत देखकर कदम लड़खड़ा गए। उन्हें लगा जैसे इस हवेली की सारी इमारत किसी ने उनके सर पर दे मारी हो। वो दीवाना वार आगे बढ़े, अपने बेटे को सीने से लगा लिया। रुकैया बेगम तो वहीं दरवाजे में ही गिर गईं। बाहिर जो हैदर को ढूंढते हुए नीचे लाउंज की तरफ आ रही थी, हवेली के अंदर किसी मैयत को आते देखकर वो डर गई। वो भागती हुई नूर बेगम के पास गई और उनके पीछे छुप गई। हैदर अब इतना बच्चा ना था कि वो समझ ना सकता कि हीर पर अब क्या गुजरेगी। उसे अपने चाचू की सारी बातें याद आ रही थीं। नूर बेगम बहुत आहिस्ता से हीर का हाथ पकड़कर मैयत तक लाई। उन्होंने माही को आगे किया और सुलेमान के चेहरे से कपड़ा हटा दिया। ये वो वक्त था जब 5 साल में हीर पर आसमान फट पड़ा था। वो दीवाना वार आगे बढ़ी और अपने बाप से लिपट गई। अब वो इनको आवाज़ें दे रही थी, बाप को पुकार रही थी। बाबा, क्या हुआ है आपको? बाबा उठे ना, बाबा प्लीज़ उठे ना। बाबा आप कुछ बोलते क्यों नहीं? प्लीज़ आप भी मुझे मामा की तरह छोड़कर मत जाएं। उसके ये अल्फाज सुनकर लाउंज में हर शख्स की आंखों से आंसू बह निकले और हाकिम खान को अपने बेटे के अल्फाज याद आ रहे थे जब उसने कहा था कि मैं आपसे बेहतर बाप बनूंगा। हाँ, वो आज दुनिया का बेहतरीन बाप बन गया था। माही दीवाने वार बाप से लिपटी रोई जा रही थी। हैदर ने बहुत मुश्किलों से अपने बाप उसे बाप की मैयत से अलग किया। वह हैदर की गले लगी, बिल्कुल इस बच्चे की तरह तड़पती हुई रो रही थी जैसे उसका खिलौना ना मिले तो वो आसमान सर पर उठा लेता है। सुलेमान को उसकी वसीयत के मुताबिक अक्सा के पास दफन किया गया था और फिर सुलेमान खान और अक्सा खान की मोहब्बत का ये खूबसूरत बाप ख़त्म हो गया। वो दोनों मोहब्बत में सुरखरू होकर जा चुके थे और पीछे एक नई मोहब्बत की कहानी के आगाज़ को छोड़ कर चुके थे। अब किस्मत ने हैदर और माहिर खान की कहानी को लिखना था। सुलेमान खान हैदर को अपनी बेटी के रूप में एक तोहफ़ा देकर जा चुका था। सलमान की मौत को एक हफ़्ता हो चुका था और हीर को चुप लग गई थी। वो जो अपने बाप के सीने से लिपट कर सोने की आती थी, पिछले एक हफ़्ते से अपने बाप की शक्ल देखने को नहीं मिल रही थी और ना ही कुछ खाती थी और ना ही कुछ बोलती थी। अब बस हर वक्त अपने बाप का इंतज़ार करती रहती। हवेली में वो सिवाय हैदर के किसी की कोई बात का जवाब नहीं देती थी। हैदर बहुत मुश्किलों से उसे थोड़ा सा खाना खिलाता था। उसकी ये हालत देखकर हमाद और नूर दोनों के दिल फटते थे। वो जानते थे वो बच्ची है, छोटी सी उम्र में सदमा बड़ा लगा है, इसलिए बहुत वक्त लगेगा नॉर्मल होने में। वो दोनों इससे बिल्कुल माँ बाप की तरह प्यार कर रहे थे और वो रातों को रोती हुई सुलेमान को पुकारती थी। फिर हैदर उसे बहुत मुश्किल से संभालता था। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया। सुलेमान की मौत को 6 माह गुजर चुके थे। वो पहले की तरह नॉर्मल तो ना हो सकी, मगर अब भी कुछ बेहतर हो गई थी। वो इस वक्त अपने बाबा के कमरे में बैठी उनकी तस्वीर सीने से लगाए पता नहीं छत की तरफ क्या देख रही थी। इतने में हैदर की आवाज़ उसके कान में पड़ी। हीर, हीर, हीर। वो सारी हवेली में हीर को ढूंढता फिर रहा था। आखिर में वो इस कमरे में आया। हीर को इस हालत में देखकर उसका दिल दुख रहा था। वो 13 साल बच्चा था, वो भी बहुत ज़हीन और समझदार, इसलिए वो सब समझता था। वो आया और हीर के पास बेड पर बैठा। प्रिंसेस, तुम यहाँ बैठी हो? मैं तुम्हें पूरी हवेली में ढूंढता फिर रहा हूँ। चलो आओ, केक खाते हैं, मेरा बहुत दिल कर रहा है खाने को। हैदर की आवाज़ पर उसने नज़रों का इर्तिकाज़ टूटा। फिर धीरे से हैदर की तरफ देखा और कुछ भी कहने को बिना बहुत खामोशी से अपने बाबा की तस्वीर को उनकी जगह पर रखा और कमरे से निकल गई। पीछे हैदर ने हसीयत से उसकी पुश्त को देखा। जारी है।